Hello students. Now after the dispersion we and spectrum, okay, rainbow formation, we are going for the next topic, that is atmospheric refraction. Students, what is atmospheric refractions? Since we know that there are different layers of the atmosphere like troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere, so many different layers are there. So the refraction of the light to the different layers of atmosphere is called atmospheric refraction. So in easy words we can say that refraction of light rays by the different layers of atmosphere. So we know that there are different type of layers, so many different type of layers are there in the atmosphere, and the refraction of light through these all layers, it is called refraction. You know what is refraction? Refraction means continuously bending of light, okay, from denser to rarer medium. If the light rays move, then the light ray will bend away from normal, but if the light rays are moving from rarer to denser medium, then it will bend towards the normal. So this is atmospheric refraction. Students, there are certain examples of atmospheric refraction that we will discuss, like the number one is the twinkling of stars. First example is the twinkling of stars. Students, in this topic about the twinkling of stars, we will discuss about two things. Number one is why the stars twinkle, and second thing is that the stars actually appears more farther than their actual position. So what are the reasons behind this? So students, let's start. So one thing is there that we know that this is a star, okay, and whenever the light from the star, it actually, suppose these are the different layers of atmosphere, okay, suppose these are the different layers of atmosphere, and here the observer is there, okay, I am just making the observer here. ये एक पर्सन है, ये अलग अलग लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, मैंने बस इसे 2-3 लेयर्स को इस तरह से बना दिया है. अब काम की बात ये है that since stars are present in the universe, and in the universe over there we know vacuum is there, no atmosphere is there, बट ये जो लेयर्स हमने बनाई है एटमॉस्फेयर की, ये जो लेयर्स है विच इज़ सराउंडिंग द अर्थ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं. एटमॉस्फेयर मीन्स हियर द गैशियस मॉलिक्यूल्स आर देयर, आयंस विल बी देयर, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स, सो मैनी थिंग्स आर देयर, इवन क्लाउड्स आर ऑल्सो देयर. सो देयर आर सो मैनी रीजन्स स्टूडेंट्स. सो जैसे ही स्टार की बात करें तो स्टार से, स्टूडेंट्स, स्टार्स है तो उनसे लाइट है, लाइट रेज है, वो निकलती हैं, है ना, मतलब सोर्स है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ लाइट. तो यहाँ से एक्चुअली, बट दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, तो इस वजह से क्या होता है, मोस्ट ऑफ लाइट तो इधर उधर ही चली जाती है उनकी, ठीक है. अब हम बात करते हैं सबसे पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. स्टार्स ट्विंकल क्यों होते हैं? तो जो स्टार से जो लाइट आती है, ये लाइट एटमॉस्फेयर तक आती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. ये मान लेते हैं यहाँ पे लाइट रेज आई, ये वाला मीडियम बेटा कौन सा है, रेयरर, और ये वाला मीडियम कौन सा है, डेंसर कंपैरेटिवली. और जब लाइट रेयरर टू डेंसर मूव करती, बहुत कम डेंसर है, तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएं तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड कर जाएगी. इसी तरह से अब जब लाइट रे नेक्स्ट लेयर मिलती है, मान लेते हैं
कि ये मीजोस्फीयर है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर मिली, मेजोस्फीयर से स्ट्रेटोस्फीयर कंपैरेटिव और भी ज़्यादा डेंसर होती है। तो जब ये जाएगी तो ये और भी ज़्यादा डेंसर होगी। तो यहाँ पे ये सरफेस है, इसके लिए ये वाली मीडियम रेयरर और ये डेंसर। तो कंटिन्यूसली डेंसर मीडियम बढ़ता जाता है, ड्यू टू विच द लाइट रेज बिगिंस टू बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल कंटिन्यूसली। और जब ऑब्जर्वर की आई तक आती है तो ये इतनी कंटिन्यू बैंड होते 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 जो इसका पाथ है, ये जैसे मैं इसको बनाऊं, ये ऑब्जर्वर है तो इसका पाथ है, हमें इस तरह से बैंड है वो दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो ये इस रीज़न से क्या है, ये बैंड हुआ, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है कि जब लाइट आती है, जैसे ऐसा तो है ही नहीं एक ही लाइट रे आएगी, काफ़ी सारी लाइट रेडिएशंस होती हैं जो आती हैं। जैसे एक और लाइट रे आई तो ये भी क्या करेगी, कंटिन्यूसली बैंड होगी, जो भी है ना। सिर्फ एक एग्जांपल लिया है अपन ने। तो स्टूडेंट्स, बात ये है कि जो लाइट रेज है वो अलग अलग एंगल्स पे गिरती है और अलग अलग एंगल्स के थ्रू अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के ड्यूरिंग हमारी आंखों तक पहुंचती है, ऑब्जर्वर आई तक पहुंचती है। तो और दूसरा ये भी होता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, क्लाउड्स है, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो लाइट आने वाली इतनी सारी रेज, उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी लाइट रे आ जाती है। तो कंटिन्यूसली जो इंटेंसिटी है रेडिएशंस की वो क्या होती रहती है, फ्लक्चुएट, मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट रेज है वो आती हैं, और इस वजह से जो स्टार है वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो जो स्टार से आने वाली जो लाइट रेज है वो जब भी ऑब्जर्वर आई तक पहुंचती है तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स तक से पहुंचती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के ड्यूरिंग पहुंचती है, और डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट पहुंचती है ड्यू टू कंटिन्यूसली रिफ्रैक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इस वजह से स्टार हमें ट्विंकल दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। सेकेंड थिंग है कि जो स्टार्स है वो क्या है, हमें एक्चुअली स्टार यहाँ नहीं दिखेगा, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखेगा बल्कि किसी और ही पोजीशन पे दिखेगा। इसको हम कहते हैं एपरेंट पोजीशन। तो बच्चों ये बैंड करते 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 हमारे पास आया है, तो ये एक क्या है, कर्व्ड पाथ है। हमें कहाँ दिखेगा स्टार, अगर इसी कर्व्ड पाथ पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट को हम ऊपर बढ़ा दें स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट बढ़ा दे तो इसी स्टार के ऊपर ये जो पोजीशन है यहाँ पे हमें स्टार दिखता है। दिस इज़ द एपरेंट पोजीशन एंड दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन। तो स्टार जितनी दूर होते हैं उससे भी ज़्यादा दूर हमें दिखाई देते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, आई होप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है और वाई स्टार्स appear more farther as compared to their actual position. I think you understand